इससे बहुत ताकत मिल रही है प्रदीप जी। और राज ठाकरे जी जो बार बार अभी तक कह रहे थे महाराष्ट्र के बारे में, किस प्रकार महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, once again we are going back to what Raj Thackeray said. And even now, by the way, we know for a fact that whenever people have problems they actually go across to Raj Thackeray and he actually solves the problem. सबसे बड़ी बात ये है He does solve the problem. कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है साहब। He had, when we talk about leadership, he's more inspiring leadership. That's right. He's inspiring, and it's a matter of He's time. not boring. It's a matter of time that the people who believe that he's a great leader, but who used to vote for Right. Uddhav Thackeray, will ideally follow their hearts and come out and vote for him, believing that he is the rightful heir of Bala Sahib Thackeray. But he is. On that I have no doubt. And from there everything starts. I mean, I have everything has no a doubt way. in my mind. Everything I have falls- no doubt at all in my mind. Everything falls in place only that the real when there is inheritor, that the real inheritor of Bala Sahib Thackre's legacy is actually Raj Thackeray. And at the moment to talk about it, from the Maharashtra Navnirman Sena, we have Mr. All right, I was just told that he's there. I think there seems to be a lot of technical problems So today. we were talking about getting on. Now, ideally, we're talking about general elections 2024. Yes. Uddhav Thackeray said everybody has to come in one platform, common platform. Mallikarjun Kharge said first forcefully that we will lead the opposition, and ideally, And it that all has breaking to news, be- by the way, has nothing to do with Raj Thackeray. and yes. it's ideally always that the second largest party, the single largest party, should lead the coalition. You can't have a fractured that 4% who's a party that is having 4% will lead and be the prime minister candidate. It will give us the period of Deva Gowda, I.K. Gujral, Chandrasekhar, V.P. Singh, which was the darkest period of Indian democracy. Right, when I we think had we've got minority Avinash. governments. I think we've got Avinash Abhyankar with us. Avinash Abhyankar ji, namaskar. Namaskar. How are you, sir? Absolutely fine. Lovely to see you. Yeah. How are you after so many years? After so What many is the years. That's right. That's Yeah, right. Yeah. I am Rajiv K. Bajaj, RKB. Along with me, Advocate Pradeep Nambiar ji. हाँ जी, नमस्ते. प्रदीप जी नमस्ते. Namaskar. Namaskar. नमस्कार सर, नमस्कार. अविनाश अभ्यंकर साहब, तो राज ठाकरे जी ने ये साबित करके दिखा दिया हाँ. कि अगर किसी की कोई तकलीफ है तो उसको राज ठाकरे के पास जाना चाहिए हाँ. और तकलीफ दूर हो जाएगी. मतलब सीधी सादी बात है. जिस प्रकार वो जो गैर कानूनी तौर से एक कोई नई दरगाह बन रही थी महिम समंदर में माहिम में जी, मतलब एक रैली करी और अगले दिन सुबह उसको डिमोलिश कर दिया गया. जबरदस्त, फैंटास्टिक. आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, रियली एंड ट्रूली लवली. अब इसके आगे क्या सर? अब आगे क्या प्लान है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, ये बताएं सर. सी ये हमारे पार्टी का नाम ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है जी. पार्टी को अभी हुए 17 साल ही हुए. हमने बहुत यश भी देखा है, अपयश भी देखा है जी. और राज साहब जो बोलते हैं वो करते हैं. अगर कोई भी चीज अनधिकृत होगी तो जी. उसके ऊपर तो डेफिनेटली वो बरसेंगे ही. जी. और जब राज साहब बोलते हैं तो विरोधकों को या सत्ताधारियों को मालूम है कि अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं की, प्रॉपर एक्शन, जी. तो उसके परिणाम बहुत अलग हो जाएंगे. क्योंकि राज साहब जो भी विचार देते हैं या जो भी भूमिका लेते हैं जी. वो एकदम स्पष्ट रहती है और उसके ऊपर वो हमेशा कायम रहते हैं. उसके ऊपर कभी वो घूमजाव नहीं करते. जी. और ये जो माइम का टिपिकल केस था, जी. ये बहुत सालों से ये वहां पे अनधिकृत वो स्ट्रक्चर था, तो इसके लिए वो ये मुद्दा उन्होंने पाड़वा के भाषण में मेलावे में उठाया और उसके ऊपर का रिजल्ट आपने देखा विद इन 24 आवर्स व्हाट हैज हैपेंड. जी बिल्कुल. और यहाँ पर आपने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि जो शक्ति प्रदर्शन होता है, वास्तविकता में जो शक्ति है, जो प्रभाव है, उसके लिए सरकार में रहने की जरूरत नहीं है. जैसे बाला साहब ठाकरे करते थे, बिल्कुल वैसे ही. जी. सी अगर आपके विचार सही है और पक्के हैं जी. और अगर आपके विचारों के ऊपर जिसको हम बोलते हैं कि एकदम स्ट्रांगली खड़े हैं, जी. तो उसके लिए आपको सभागृह में होना जरूरी नहीं है. आप रास्ते के ऊपर रह के अच्छे विचार देके भी सत्ताधारियों के ऊपर प्रेशर डाल के अच्छे काम पूरे कर सकते हैं. जी दुरुस्त बात. प्रदीप जी. Abhyankar Sahab, everybody in Maharashtra, the true voters of Shiv Sena always knew in their hearts that Raj Thackeray is a better leader, Raj Thackeray is a more trustworthy leader, Raj Thackeray was a person who believed the real personality of leadership जो बोलते हैं उन राज ठाकरे जी में था. But because of बाला साहब ठाकरे जी और जो भी है वो दिल इधर था मगर वोट उद्धव जी को देते थे. तो आपको लग रहा है कि आज वो दौर आ गया है
कि राज ठाकरे जी विल अगेन जो दिल में है वो लोगों के वोट भी लेने में कामयाब हो जाएंगे, बिकॉज नाउ जाएंगे ना। थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर हिम द वे इट इज। अभिनंदन साहब, आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन। देखिए, मराठी में एक कहावत है, आपको राजीव जी अच्छी तरह बताएंगे, उन्होंने मुंबई में काम किया है, जी की वारसा हा विचारांचा असतो, तो वास्तूचा नसतो। जी तो जो विचार सन्माननीय बालासाहेब जी ने दिए हैं, वो अगर आप देखेंगे कौन सा भी विषय होगा, अगर लाउडस्पीकर का होगा या मराठी मानुष का होगा या जो भी होगा, वो विषय राज साहब ही आगे लेके जा रहे हैं और सक्सेसफुली लेके जा रहे हैं। और अभी पार्टी को 16 साल 17 साल ही हो गए हैं। आप अगर दूसरे पार्टियों का इतिहास देखेंगे तो उनको भी यश मिलने में थोड़ा टाइम लगा था, और हमारे पास पेशेंस है, हमारे पास राज्य विचार है, राज्य शक्ति है, राज्य भाषा है, और महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता डेफिनेटली आज ना कल हमारे पीछे जरूर खड़ी होगी। जी और आज हम जो रास्ते पे आंदोलन करके सक्सेस लेते हैं, तो सभागृह में भी जाके ये महाराष्ट्र का पूरा नवनिर्माण भी करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन यहाँ पर अभयंकर साहब सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक राज ठाकरे जी का प्रश्न है, राज ठाकरे जी को वास्तविकता में कोई किसी सरकारी ओहदे की कोई आवश्यकता नहीं है, वेरी फ्रैंकली, बिकॉज आई हैव सीन हिम फंक्शन राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन ही लेफ्ट एंड एब्सोल्युटली राइट। तो मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार वो आज भी लोगों के काम पूर्ण कर देते हैं, तकलीफें दूर कर देते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जो आपने कहा कि महाराष्ट्र के लोग उनके पीछे रहेंगे, अभी भी पीछे हैं, सिर्फ अभी वोट नहीं दे रहे। शायद वोट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आप भी जानते हैं कि वोट लेने की और वोट दिलवाने की केमिस्ट्री जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। वोट लेने की और दिलवाने की केमिस्ट्री लास्ट 48 आवर्स में घूम जाती है, दैट यू नो वेरी वेल। यस ओके, यस। तो लेकिन कैसा है कि वापस में वही चीज दोहराऊंगा सर, कि डेफिनेटली हर दर्द की दवा राज साहब ठाकरे और महाराष्ट्र निर्माण सेना ही है। और अगर महाराष्ट्र का नवनिर्माण करना है जी तो डेफिनेटली सत्ता में आना ही होगा, जी भले थोड़ा वक्त जाएगा, जी क्योंकि अगर आप सत्ता में रहेंगे, जी विरोध में रहना, अपनी बातें करवाना, अपने विचार देना और लोगों के और महाराष्ट्र सैनिकों की ताकत से वो पूरे करना, ये एक बात है। लेकिन अगर आप सत्ता में रहेंगे तो डेफिनेटली तो राज साहब ने ख्वाब देखा है, जो कि महाराष्ट्र के फार्मर्स के बारे में होगा, महाराष्ट्र के सामान्य जनता के बारे में होगा, जी वो हम लोग और अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। इसलिए अभी 17 साल के बाद डेफिनेटली हमको सभागृह में जाना है। ये बात मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, पता नहीं लोगों को याद है कि नहीं है, जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना भी हुई थी, उसी वक्त से महाराष्ट्र के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था एमएनएस में। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। Yes. At least I am sorry to interrupt you in between. You are the only person who remember about blueprint के बारे में। I am really thankful to you. Sir, I पत्रकार remember- लोग तो सवाल पूछते हैं, जी। लेकिन आने के बाद सब लोग भूल गए कि ब्लूप्रिंट कहाँ पे चली गई। जी लेकिन अकेले राज साहब ठाकरे थे जिन्होंने दो चीजें मुझे कही थी, एक बार नहीं, वो तो अपने शो में, मतलब आई हैव बीन वेरी ऑनर्ड टू हैव राज साहब ऑन द शो सो मेनी टाइम, बोथ प्रदीप जी एंड आई। I know. उन्होंने एक चीज ये जरूर कही थी कि आज तक हम लोग 1947 से लेकर के आज तक हम लोग वही रोटी कपड़ा मकान ट्रांसपोर्ट सिर्फ उसी के झमेले के अंदर फंसे हुए हैं। हमें मतलब शर्म नहीं आती एज ए कंट्री हम लोग क्या कर रहे हैं, विच इज अमेजिंग। नाउ माय पॉइंट इज, वो वाले राज साहब ठाकरे जो हैं, उनका जो वो विजन है, उसका भी अगर प्रचार किया जाए बहुत अच्छे तरीके से अभयंकर साहब, तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी का प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा। बताएं सर। या डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं, डेफिनेटली जो हमने जो ब्लूप्रिंट में लिखा है जी उसमें जो भी चीजें है फ्रॉम पेन टू पियानो, जी वो डेफिनेटली हम लोग सत्ता में आने के बाद, ये तो प्रायोरिटी है ही, जी लेकिन उसके साथ जो अलग जो दूसरे इशू भी रहते हैं जी जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए अच्छे हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी रहता है। जी इसका मतलब ये नहीं कि राजकारण के साथ में आपको समाजकारण भी करना बहुत जरूरी है। दुरुस्त बात। उसके ऊपर से आप लोगों को जीत सकते हैं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 बार हारेंगे, लेकिन डेफिनेटली जब आएंगे तो बहुत जोर से आएंगे। और जो भी चीजें हमने ब्लूप्रिंट में लिखी है वो डेफिनेटली महाराष्ट्र की जनता को हम डोनेट करेंगे। जिसका छोटा सा उदाहरण कि विदाउट पुटिंग एनी टैक्स बर्डन, जब हमारे पास नासिक की महानगर पालिका थी जी तो बगैर कौन सा भी 1 रुपए का भी टैक्स और सब, आपको सुनने को आ रहा है सर? बिल्कुल आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरी फ्रेम थोड़ी हिल गई। ओके, कोई बात नहीं, तो आपकी आवाज आ रही है। तो वहां पे पूरा फंडिंग जो है, आप वहां पे पानी की योजना देखिए, रोड्स देखिए,
या वहां पे जो भी सुशोभीकरण का काम किया था, आई एम प्राउडली आई कैन टेल यू वन थिंग कि वहां पे जो कुंभ मेला हुआ था उसका जो हमारे मेयर थे उनका सत्कार यूएस में हुआ था जी। और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड उधर कुछ भी मिसहैप नहीं हुआ था। दूसरा, जी चैनल को आपको तो ये इमीडिएटली समझेगा जी कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में रास्ते के खड्डों के ऊपर एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ था, जी या जो भी नासिक के सुशोभीकरण के लिए किया था, या समझो जीपीएस सिस्टम पे ओला कचरा सूखा कचरा इसका जो हमने बाइफर्केशन किया था जी उसकी भी बहुत सराहना हुई थी। या गडकरी साहब जब आए थे तो उनको भी चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क कि छोटे बच्चों को समझना चाहिए। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, एक टिपिकल हमको रोल मॉडल नासिक का मिला था जिसके ऊपर हमने बहुत अच्छी तरीके से काम किया था, लेकिन अल्टीमेटली ये पॉलिटिक्स है, सब देने के बावजूद भी कभी कभी आप हार जाते हैं, जी तो उसको हमने स्वीकार किया था वो टाइम। जी। उसके रीजंस कुछ अलग थे। जी Because किसी एक बट जन ने बोला हैव था दोस आपको नासिक रीजंस दत्तक बीन दे दो। सॉर्टेड आउट सर? अभयंकर साहब, सॉरी, वो जो वजह थी या। जिसकी वजह से आप हारे, वो जो वजह या। थी जिसकी वजह से बहुत लोग आपसे दूर हो गए, आप अभी खोखे खोखे की सरकार करते हैं लोग, लेकिन हाँ, आपके साथ जो किया गया वो कुछ अलग तो नहीं था, तो क्या वो वजह उन वजहों को सुलझा लिया गया है या उस पे अभी भी काम वजह जारी है? अभयंकर वजह साहब, इतनी थी कि कभी कभी मराठी में मैं इससे जास्ती आपको समझ में आएगा की जे आपल्या ताटात खातात ना ते आपल्या ताटातच घाण करतात। तो घर वालों ने ही राज साहब के पीठ में खंजर मार दिया, जी और वो जिनके ऊपर विश्वास रखा था वो बहुत विश्वासघाती निकले। जी और दूसरा, जो दूसरे विरोधक थे उन्होंने आके बोला था हमको नासिक दत्तक दे दो, जो वो टाइम सरकार में थे। तो नासिक वालों ने तो दत्तक दे दिया, लेकिन आज पूरा नासिक चिल्ला रहा है दत्तक जाके हम लोग पछता रहे, हम वापस आपके घर में आना चाहते हैं। जी। एंड डेफिनेटली विल सी इन कमिंग फ्यूचर दैट नॉट ओनली नासिक बट मेजर ऑफ द महानगर पालिका जो है वहां पे हमारी सत्ता होगी। जबरदस्त। प्रदीप जी, अभ्यंकर साहब, इफ यू सी आज के तारीख में सावरकर इशू एमवीए बहुत उद्धव जी ने चिल्लाकर बोला एक मंच पर कि राहुल गांधी हैज टू एब्सटेन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट सावरकर बिकॉज सावरकर इज आवर गॉड। यू सी द एमवीए इज इन प्रॉब्ली इन अ स्टेट ऑफ ब्रेकअप शायद कभी भी, एंड बीजेपी एंड एकनाथ शिंदे जी इज टेकिंग दिस इशू राइटफुली। पूरे एक सावरकर यात्रा निकाल रहे, गौरव यात्रा पूरे महाराष्ट्र में। तो हाउ डू यू सी इट? सावरकर जी इज वीर सावरकर रिवर्ड इन महाराष्ट्र. Should Uddhav Thackeray continue this alliance, or you see the MV alliance breaking up? Hello? Abhinkar sir. can we have Mr. Abhyankar on screen, Hello? please? Yes, yes, we we can- getting you back, sir. Just 1 second. Yes, yes. हेलो, Yeah, we can hear you, sir. You'll be back on screen in just a second. 1 second. हेलो, Abhinkar ji, you're on. हेलो, We can hear you, sir. We can hear you. हेलो। We can hear you, sir. Yeah, we can Not see you able to also. hear you. बिल्कुल, we can see you, sir. Can You you hear me? सुनने को नहीं आ रहा है। जी, Yes, I can hear you. I can hear you. This is. today seems to be a day of Of- technical difficulties. There's a solar Not able storm to hear you. that is hitting the earth. हेलो, Sir, we can hear you. Can you hear us? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है अभयंकर साहब? वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस। Voice नहीं आ रहा है. अभयंकर साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही है, जरा उसको करेक्ट करें प्लीज। जी, अभयंकर साहब, अभी आपको आवाज आ रही है? Well, I tell you what, as far as the हेलो, Raj Yeah. Thackeray model is concerned, I think that Hello. is a model which ought to be followed all over the state. The Sir- only thing that he needs to do is, very, very frankly speaking, see that his flock sticks together. That's Exactly. it. If only the people who were there with him right in the beginning would have been there with him right now, Yes. he would be unstoppable. Abhinkar ji, can you hear us? Abhinkar sir. अभयंकर साहब, अभी आपको आवाज आ Yeah. रही है? Yes, yes. Wonderful. हाँ, आपने मुझको म्यूट ही कर दिया था। नहीं, मैं आपको म्यूट नहीं किया था सर। सर, अभयंकर साहब ये बताएं, सर आपको म्यूट नहीं करते सर। एंड यू आर नॉट राहुल गांधी। तो सावरकर इश्यू में अभ्यंकर साहब कैसे No, देखते हो I आप? was हाउ डू joking. यू सी इट? I was joking. या जी। उद्धव ठाकरे जी जिस प्रकार से राहुल Can you गांधी repeat जी the को question, आई टू आई बोला, यू कांट डिफेम सावरकर, ही इज आवर गॉड, सो व्हाई इज उद्धव जी सो लॉन्ग इन द एमवी अलायंस सर?
तो ढाई साल क्या कर रहे थे? जी 2.5 साल सत्ता में थे तभी क्या कर रहे थे? जी अभी गुड मॉर्निंग कॉल हुआ है क्या? जी और अगर जब भी आपने सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब आप कांग्रेस के साथ गए थे, तो कांग्रेस के विचार क्या है स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में? इंदिरा गांधी जी ने अपने जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा था, क्या लिखा था, भारत के सपूत, जी और ये क्या बात कर रहा है? और उसके ऊपर आप चुप्पी साधे हुए बैठे, और आज कोई आके बोल रहा है, हमारी बात हो गई। अरे ये कि आपसी मामला है क्या? आपने आपने 130 करोड़ 140 करोड़ लोगों के सामने बोला है, तो उसका जवाब आपको 140 करोड़ लोगों के सामने आके ही देना पड़ेगा। जी दूसरा को ये बोलना नहीं चाहिए हमारी बात हुई है। ये जी सवाल भी देव पार्टियों का नहीं है, ये देश की आस्था और श्रद्धा का विषय है। जी तो इसके लिए उनको सामने आना ही पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि व्हाट ही वाज सेइंग वो गलत बात कर रहे हैं, और ये गलत बात हो गई है, और ये हम दोनों मिले हैं, हमारी आपस में बात हो गई है। सब ऐसी बातें बच्चे भी नहीं करते। जी लेकिन आपको क्या लगता है कि उद्धव जी को अब एमवीए को छोड़ देना चाहिए या कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए वीर सावरकर के ऊपर जो उन्होंने कटाक्ष किया है? कैसा है सी सी इसके ऊपर कैसा है कि आप अपने प्रिंसिपल के ऊपर कितने अड़े हुए हो। जी आप अपने अपने जो पूर्वज है जिन्होंने पार्टी स्थापन की थी, प्रबोधनकार जी होंगे या जी। बाला साहब जी होंगे, उनके विचार क्या थे कांग्रेस के बारे में, उनके जी। विचार क्या थे अगर सावरकर जी के बारे में, अगर उनको आप राष्ट्र और देश की जनता को रिस्पेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली आप उनका साथ छोड़ना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे, उससे ज्यादा कुर्सी इंपॉर्टेंट है। जी आपको लगता है उनको कुर्सी मिलेगी यहाँ पर इस तरीके से रह के? नहीं, डेफिनेटली नॉट, इट इज नॉट दैट इजी। आप लोगों को हमेशा टेक इट फॉर ग्रांट नहीं ले सकते हैं। जी आप किसी के साथ प्रचार करेंगे, आप किसी के साथ किसी का फोटो लेके आप घूमेंगे, किसके ऊपर वोट मांगेंगे, और जाएगा जो आप बैठेंगे दूसरे के साथ जिसके विचार आपके साथ मिलते ही नहीं है। तो मैं इसके लिए इतना ही कहूंगा, लगाया था आम का झाड़, निकला पेरू, काटा तो हुआ पोमोग्रेनेट। अभ्यंकर साहब, ऐसी आगाड़ी थी। जी सर आप कुछ कह क्या? रहे थे अभ्यंकर जी, नहीं बोलिए। नहीं, यही मुझको बोलना है कि आपके विचार साथ में नहीं है। हिंदुत्व जो है, सावरकर कट्टर हिंदुत्ववादी थे, जी तो ये कांग्रेस को एक्सेप्ट है, ये उनको मंजूर है। दुरुस्त बात। बाला साहब जी ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था कि इनके साथ जाने के बजाय मैं अपनी दुकान या मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा। दुरुस्त बात है। तो ये तो उनके साथ जाके कुर्सी में बैठे, बाजू में बैठे, जिसके साथ प्रचार किया उसके साथ गए ही नहीं। एक के साथ प्रचार किया, दूसरे के साथ सत्ता बैठे। इसके लिए उस वक्त जब विलासराव देशमुख जी को ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, वो बाला साहब ठाकरे को मिलने आए थे सुबह आए थे जी कि राज्यसभा की जो एमपी की जो सीट थी उसको उनको किसी ना किसी तरीके से मिल जाए। तो बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था, एक कंडीशन रखी थी, कांग्रेस छोड़ दे, अगर आप इंडिपेंडेंट भी रहेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन नॉट इन द कांग्रेस। तो विलासराव ने कहा कांग्रेस इज इन माय ब्लड, तो बाला साहब ठाकरे सेड देन आई कैन नॉट सपोर्ट यू। आई स्टिल रिमेंबर। जी अभ्यंकर जी। या तो अभी इसके ऊपर मैं उल्टा पूछूंगा, जी। जो बाला साहब के विचार है जी वो उनके ब्लड में अभी है? जी। जो भी वो शिवसेना, जो ये जो शिवसेना, उनका नाम नहीं बचा, उनका जी। चिन्ह नहीं बचा, जिसके लिए लाखों शिवसैनिकों ने यहाँ पे, मतलब जो एक पार्टी खड़ी करने में जिनका खून बोलिए, जिनका पसीना पूरा उन्होंने जिंदगी दी थी, जी और इजीली अपने पार्टी का आपका पूरा नाम गया, आपका चिन्ह नहीं बचा है, और आप लोगों को सिखा रहे हैं। और सिखा कौन रहे हैं? जो बाला साहब, जो उद्धव जी और जो आदित्य जी को गालियां दे रहे थे, वो आज उनको सिखा रहे हैं और महाप्रबोधन यात्रा में बता रहे कि शिवसेना कैसी होनी चाहिए। राइट राइट। तो मतलब क्या बोलते हैं इसको की जी अभी हिंदी में क्या बोलते मालूम नाही, पण मराठीत असं म्हणतात की तुम्ही कोणाकडे काय सांगताय आणि कोण काय बोलतोय, जिसने आपके बारे में कभी अच्छा सोचा ही नहीं था, जी अब उसके हाथ में आपने पूरी सत्ता की डोर दी है, और जी। आपके जो विश्वास वाले लोग हैं वो आपको छोड़ के चले गए हैं। वो क्यों चले गए हैं, उसके ऊपर आत्मचिंतन होना जरूरी है। लेकिन इसलिए एक खाली चीज- बिकॉज़ मैं पार्टी में नहीं हूँ। लेकिन अभ्यंकर जी, एक चीज की मुझे बहुत खुशी है कि राज ठाकरे साहब जो हैं वो बिल्कुल अपनी पुरानी फॉर्म में, ये नहीं कहूंगा वापस आ गए क्योंकि वो कहीं गए नहीं थे, यहीं पर थे। हाँ, लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस बार आप लोगों का संगठन जो है वो बहुत ताकतवर रहेगा और उन्हीं लोगों को आप आसपास रखेंगे जो असल में आपके लॉयलिस्ट होंगे। सर डेफिनेटली। आवाज जी, आवाज कैन तो यू हियर मी सर?
या कभी कभी क्या होता है, जी अगर दूध से मुंह जले ना तो आदमी भी छाछ फूंक के पीता है। जी तो अभी हमारा मुंह तो एक दो टाइम जला है, जी तो इसके लिए भी डेफिनेटली अभी जो भी रहेंगे, देखो विचार तो एक्सेप्टेड है। जी कहाँ पे हम महाराष्ट्र सैनिक शायद कम पड़ते होंगे लोगों तक वो पॉजिटिव विचार पहुंचाने में। राज साहब सब चीजें बराबर लोगों के सामने रखते हैं, वो लावरे तो वीडियो होने दो या उनका विजन होने दो। जी शायद कहाँ पे हम महाराष्ट्र सैनिक कम पड़ रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड यू विल सी इन कमिंग फ्यूचर कि डेफिनेटली हमारा महाराष्ट्र में प्रेजेंस बहुत बढ़िया रहेगा। वंडरफुल। अभ्यंकर साहब, व्हेन उद्धव जी का जो सभा चल रहा था, आई थिंक एकनाथ शिंदे जी आए, राज ठाकरे जी से मिले, और इस पे संजय राउत ने बहुत आलोचना इस प्रकार से अलग अलग एक फिल्मी स्टाइल में कुछ कहा था कि जो मुझे बोलना नहीं चाहिए। तो हाउ व्हाट इज प्रॉब्लम विद संजय राउत, व्हाई? कैसा है माहिती है ना, ये वैषम्य जो होता है, वैषम्य आप हिंदी में क्या बोलते हैं मुझको मालूम नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है। जी देखिए आपके नीचे आपके वहां पे पूरी आग लगी है, बराबर है, आपके पार्टी में कोई रुकने को तैयार नहीं है। अभी राज साहब को मिलने को कौन आता है, क्या करता है, क्या बात करते हैं, उससे उनका क्या लेना देना है, क्या करना है। और उनको एक समझता नहीं है कि राजनीति के आगे एक दोस्ती नाम की चीज रहती है जो उनको नहीं समझ सकती है। उसके लिए आए होंगे, और अगर समझो राजनीति के लिए आए हैं तो हम वो देखेंगे ना, उनको क्यों तकलीफ हो रही है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। उन्होंने उनकी पार्टी का अच्छा देखना चाहिए। रोज सुबह 9 बजे आके अपना अलार्म कैसा रहता है वैसा आके पाक 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 बात करने का, लोगों को गाली देने का, इसके वजह से ही उनके लोग उनको छोड़ के चले गए हैं। ये ध्यान में उनको रखना चाहिए कि आमदारों की वजह से, लाखों शिवसैनिक के वजह से वो सत्ता में आए थे, न कि राउत साहब के वजह से आए थे। सुबह उठ के राज साहब को बोलना, अगर मेरी पार्टी खत्म हो गई है तो मेरे पार्टी के ऊपर बात क्यों करते हो, क्योंकि आप राज साहब से डरते हो, उनके विचारों से डरते हो कि डेफिनेटली ये आदमी आज जो एक आमदार लेके खड़ा है, ये अगर पूरे महाराष्ट्र में छा गए तो ये डेफिनेटली अकेले सत्ता में आ सकते हैं, और ये डर है, और ये डर रहना जरूरी है। और इनका कहना था, संजय राउत जी का कहना था कि दोनों एक दूसरे के आंसू पहुंच रहे थे। अभी कौन से आंसू हो सकता है अभ्यंकर साहब? वो अगला टाइम उनको मैं रुमाल लेके बुलाऊंगा साहब के घर पे। जी अभी उनको घर के अंदर की भी बात समझते हैं, इसमें कुछ नहीं रे बाबा। एक मराठी में एक कहावत है कि जलजल तोयमी मलमल तोयमी, ये जलजल है, ये मलमल। अभी हिंदी में आई डोंट नो व्हाट यू से, ये आग लगी है उनको, ये उनको दुख हो रहा है, आप समझे मेरी बात। और ये चाइल्डिश है, ये थॉट चाइल्डिश है। आप एक अच्छी पार्टी के अच्छे संपादक होना जरूरी है जी लोगों को अच्छा मैसेज देना जरूरी है, न कि सुबह आके अश्लील या असला या जो भाषा आप यूज करते हैं वो महाराष्ट्र को जनता की हजम नहीं होती है, वो एक्सेप्ट नहीं होती है। इसके लिए लोग आपको और डेफिनेटली आई विल से वन थिंग कि आप प्लीज पहले आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, पहले अपनी पार्टी संबंधी अपना। हाँ। लेकिन जहां तक राज ठाकरे जी का प्रश्न है, शुरू से आज तक हमको यही दिख रहा है कि अगर वास्तविकता में बाला साहेब ठाकरे के कोई विचारधारा के कोई असली उत्तराधिकारी हैं तो वो राज ठाकरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं सिर्फ उनके हाव भाव की बात नहीं कर रहा, उनकी आवाज की बात नहीं कर रहा, उनके बोलने के तरीके की बात नहीं कर रहा, वो भी बिल्कुल बाला साहेब ठाकरे की तरह है, उनकी आवाज भी बिल्कुल बाला साहेब ठाकरे की तरह है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन विचारधारा सबसे बड़ी बात यह है, और वो बोलने का तरीका, वो आक्रामक बोलने का तरीका। यहां पर आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, 1966 में पार्टी की स्थापना हुई, 1995 में पहली सरकार बनी, 1995, दैट इज ऑलमोस्ट 30 years, almost 30 years, so you still have time, effectively speaking। जहां तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रश्न है, अभी भी वक्त है आपके पास। जी अभी भी नहीं, हमारे पास हमेशा वक्त था, हमेशा वक्त था। कभी कभी हम लोगों को समझाने में कम पड़े होंगे। जी राज साहब ने तो बहुत बढ़िया तरीके से, लोगों ने हमको उसका रिवॉर्ड भी दिया था। हमारे 13 MLAs आए थे, जिला परिषद सदस्य आए थे, बहुत से कॉर्पोरेशंस में हमारी नासिक में सत्ता थी, पूना मुंबई, कहा तो हम लोगों तक किया हुआ काम पहुंचाने में कम पड़ गए। आगे से डेफिनेटली ये नहीं होगा। और जो नेता हमारा है, जो सर्वोच्च नेता सम्मान्य राज साहब है, वो खाली दिखने में, चलने में या पहनने में वैसे नहीं है, लेकिन विचारों में पूरे अभ्यास पूर्ण है। उनको मालूम है महाराष्ट्र की जनता को क्या देना है, महाराष्ट्र के फार्मर्स को क्या देना है, और डेफिनेटली महाराष्ट्र का नवनिर्माण करना है, और वो आने वाले वक्त में करेंगे, मतलब करेंगे ही। अभ्यंकर साहब, यहाँ पर एक और सवाल सामने आता है, वो ये है कि आपको याद होगा कि राज साहब बड़ी सुर्खियों में आ गए थे पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में भी, जब उन्होंने ये कहा था
कि भाई मुंबई कोई धर्मशाला नहीं है, महाराष्ट्र कोई धर्मशाला नहीं है। आप लोग अपने अपने स्टेट्स को डेवलप कीजिए। यहां पर आकर के आप जो मराठी मानुस की जो आप नौकरियां ले रहे हैं, आप जिस इनडिसिप्लिन से आप यहां पर काम कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में रह करके हमारी परंपराओं का आप मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। आज भी हम लोगों की विचारधारा वही है या बदलाव आया है? नहीं, सी हम कौन सी जात या धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे देश की रचना भाषावार प्रांत रचना हुई है जी अगर मैं गुजरात में जाता हूं तो मुझको गुजराती सीखनी ही जरूरी है। जी मेरा बोलना, मेरी थॉट प्रोसेस, मेरा काम एक गुजराती लोगों को दुख देके नहीं चलेगा। जैसे और साहब ने क्या बोला है कि अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, 2014 में बोले थे या अभी जी। 2018 में भी वही बोले थे, तो पहले आप यूपी डेवलप करो, बिहार डेवलप करो, जी अलग राज्य है वो डेवलप करो, तो ऑटोमेटिकली जो एक राज्य के ऊपर जो लोड आता है, एक अपने घर की भी कैपेसिटी रहती है कि जी। एक 2 बेडरूम हॉल किचन में कितने लोग रह सकते हैं। वहां पे अगर 50 लोग आएंगे तो डेफिनेटली झगड़ा होगा। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे आना, और यू नो द रूल्स कि हर एक शहर के रूल्स है, जी और सब लोग बुरे नहीं रहते। जो यहाँ से सालों साल रह रहे हैं, जो मिलजुल के रह रहे हैं, जो मुंबई की भाषा, जो मुंबई के संस्कार, जो महाराष्ट्र की संस्कृति उसके जी। साथ मिले जुले हुए हैं, जो पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए हैं, वो तो ऑलवेज वेलकम है। लेकिन यहाँ पे आके काम छोड़ के राजनीति करना और गुट गुट में वो सेपरेट करना, ये जी। डेफिनेटली हम होने को नहीं देंगे। दुरुस्त बात, दुरुस्त बात। या, अम्बेडकर साहब, संजय राउत जी का प्रॉब्लम लोग समझ सकते हैं, बिकॉज बीएमसी आपको चुनाव बहुत में अच्छे लगता है संजय राउत जी। बीएमसी चुनाव में 27-28% बीजेपी और उद्धव सेना का वोट शेयर था। टुडे उद्धव सेना इज नॉट देयर एंड राज ठाकरे जी हैज द कैपेसिटी टू फिल द वैक्यूम एंड टेक ओवर दैट 84 to 88 सीट जो है, जो लास्ट टाइम उद्धव सेना ने जीता है। तो आज ये उनको तकलीफ यही है कि इफ एकनाथ शिंदे जी, राज ठाकरे जी और देवेंद्र फडणवीस जी एक साथ आ जाता है, तो they are going to take over the BMC. That's the biggest problem, and they don't want that to happen. तो आज वो वैक्यूम जो उद्धव जी का वैक्यूम जो है अराउंड 84-88 सीट्स, that only राज ठाकरे जी can fulfill, and I think देव फडणवीस also knows it. एकनाथ शिंदे जी को वही मालूम है। तो are we looking at an alliance, एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस जी और राज ठाकरे जी का? देखो, अभी मैं इसके ऊपर बात करना बराबर बात नहीं है। हमारे लिए सिंपल है, राज साहब जो बोलते हैं उसके ऊपर महाराष्ट्र सैनिक आगे चलते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जी आज महाराष्ट्र मुंबई की जनता भी परेशान है। 25 साल आप सत्ता में हो। 25 साल किसको बोलते हैं? आपका बीएमसी का बजट, मैं मुंबई की बात करूंगा, बीएमसी का बजट आज करीबन 50,000 करोड़ रुपया है। सर 53,000, डोंट फॉरगेट 3,000। और फिर नहीं, 3,000 खाने में ऊपर नीचे लगते, इसलिए 50 आई वाज जोकिंग। जी जी सर। तो अगर आप एवरेज भी निकालेंगे तो देखिए कितना लाख करोड़ रुपया जी। उन्होंने मुंबई के लिए आपने वेस्ट किया है। मतलब मैं कभी मजाक में बोलता हूँ, जब मेरे बाल काले थे तो हमारी जो मीठी नदी थी वो नदी थी। जी जब मैं बाल पेंट करने को शुरू किया जी। तो वो नदी का नाला हो गया, और आज टक्कल पड़ गया जी। तो वो नदी का गटर हो गया। गटर लेकिन हो गया। हमारी मीठी और काली होती जा रही है। ये जी। बेसिक थिंग है। आपके शहर में आप टेक्नोलॉजी देखिए कहाँ पे गई है। रास्ते के लिए आपका बजट रहता है 85 और 100 करोड़ रुपए। काय के लिए? अगर हमारे जैसे, हम एक छोटा शहर, नासिक जैसा शहर, विदाउट एनी करप्शन, एक भी नगर सेवक के ऊपर, एक भी कॉर्पोरेटर के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं। नासिक में यू कैन गो एंड चेक। अगर वहां पे 5 साल रोड का कुछ भी खड्डों का कार्यक्रम नहीं होता, ये पैसा किसका है? लोग आपको टैक्सेस दे रहे हैं। आज भी मुंबई में बहुत जगहों पे पानी की समस्या है और रोड ब्लॉकेज है। तो फिर आपने 25 साल में दिया क्या है? कुछ नहीं दिया है मेरे हिसाब से। आपने कुछ भी, जो मुंबई की अगर आप ताकत देखें तो उसकी डिलीवरी उसके बजट के सामने आपने कुछ भी नहीं दिया है। जी। इसलिए अलायंस का तो साफ देखेंगे, जाना नहीं जाना वो हमारे लिए मतलब हम सोचते भी नहीं उसके बारे में। what राज साहब will say, we will go as per that, simple. वंडरफुल। And पर सर secondly, वैक्यूम but बहुत बड़ा वैक्यूम है अभ्यंकर तो साहब। वैक्यूम बड़ा है तो डेफिनेटली राज साहब के विचारों से ऐसा भी हो सकता है हम अकेले में सत्ता में भी आ सकते हैं। करेक्ट। ये सब पार्टियां, बीजेपी जब अटल जी, अडवाणी जी देख रहे थे तो उन्होंने 0-2 से लेके आज वो 300 के ऊपर सांसद लेके बैठे हैं। जी और हम Correct. तो अभी 17 साल के जवान हैं।
जी, absolutely. हमको भी- Now you हमें are in your लगता- youth. Yeah. Absolutely. We agree with you entirely. Now, but the Yeah, only thank thing you. is, sir, as far as Mumbai is concerned, or Navi Mumbai is concerned, or Thane is concerned, Yeah. especially Mumbai. मुंबई में जो राज ठाकरे जी की जो इन्फ्लुएंस है, Yeah. वो वास्तव मैं सिर्फ राज ठाकरे जी एज राज ठाकरे जी बात कर रहा हूँ, नॉट Yeah. जस्ट एज एमएनएस. एमएनएस तो है ही, लेकिन हमने देखा वो पावर जो थी, हमने देखा जब आपने टोल गेट, जहां पे वो टोल टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, रोड के जो टोल टैक्सेस के ऊपर, वहां पर हम लोगों ने देखा क्या प्रभाव हो सकता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का. वास्तविकता में सरकार को एक्शन लेना पड़ा जब आपके लोग एक एक टोल गेट पर गए और उन्होंने कहा कि भाई इसको बंद कीजिए, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है बहुत पहले का खत्म हो चुका है, आपके पास पैसे आ चुके हैं, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं. मैं आपसे जानना चाहता हूं आगे भी कोई ऐसी प्लान है क्या. मैं सिर्फ रोड टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी सब चीजों की भी बात कर रहा हूं. क्या उनको लेकर के सिविक इश्यूज पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और कोई आंदोलन चलाने वाली है. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी अभी मराठी चैनल पे जाइए, एटलीस्ट यू रिमेम्बर कि एमएनएस ने क्या क्या आंदोलन किए हैं. जी. बाकी सब लोग अपने हिसाब से भूल गए हैं. सर, आई एम एन ओल्ड मैन. आई एम अ वेरी ओल्ड मैन विद अ वेरी गुड मेमोरी. सर. ओके आई विल टेल यू वन थिंग. जी. देखिए, ये जो टोल का आंदोलन किया था, जी. उसके ऊपर 65 टोल्स बंद हो गए. जी. महाराष्ट्र भाषा, मराठी संस्कृति, इसके ऊपर जो आंदोलन किया था, उसके हिसाब से सिने का जो मराठी भाषा को, जो मराठी पिक्चर्स के लिए प्राइम टाइम था, उसके ऊपर वो हमारा आंदोलन सक्सेसफुल हो गया. ऐसे आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे तो बहुत आंदोलन, और इम्पोर्टेंट आंदोलन, जो खुद को हिंदू, हिंदुत्व 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 ये जो चिल्लाते हैं ना, हम लोग राज साहब को क्यों हिंदू जननायक कहते हैं. जब रजा अकादमी ने मुंबई में जो मोर्चा निकाला था, जी. तो मैं आपको बताने की जरूरत नहीं तब क्या हुआ था. जी, Only. सबको मालूम है, सबको मालूम है. चैनल के ऊपर क्या हुआ था, वहाँ क्या जी. केओस हुआ था. सर, अमर उसके जवान बाद- ज्योति जो है वो तोड़ दी गई थी. या जी. और चैनल की गाड़ियां भी जला दी थी, उनको जी. भी कुछ तकलीफें दी थी. उसके टीवी के मतलब पुलिसों के ऊपर भी, हमारी बहनों के ऊपर भी उन्होंने क्या बोलते हैं जिसको, थोड़ा मारा था उनको. जी. लेकिन पूरे देश में एक ही राज साहब ठाकरे और उनके महाराष्ट्र सैनिक है, शायद आपने भी वो कवर किया होगा, अच्छी तरह किया. जिन्होंने इनके खिलाफ मोर्चा निकाला था और इतना ही कहा था, रहना है तो अच्छी तरीके से रहो, अगर हमारे ऊपर आओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं. दुरुस्त बात. और इसके लिए हम गर्व से कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट के बाद एक ही हिंदू जननायक है जिनका नाम राज साहब ठाकरे है. आप एक और आंदोलन के बारे में भूल गए सर, मैं जरा याद बोलिए. दिला दूं आपको. बोलिए. वो ये था कि रेलवे. जितनी नहीं, रेलवे नहीं, रेलवे का तो है ही सर, ये छोटा सा था लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बोलिए. जितनी भी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स हैं पूरे मराठी. मुंबई मैंने में, बोला ना मराठी भाषा. हर जगह पर मराठी में भी साइनेज होगा. ये yes. राज ठाकरे साहब की देन है, और वो भी मुंबई शहर में. और मतलब ताज्जुब है. सत्ता में नहीं रहने के बावजूद. जी. और ये ताज्जुब है कि मुंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र के कैपिटल में, मराठी में कोई साइनेज नहीं थी राज ठाकरे जी के आंदोलन के पहले. मतलब इसको सच्चाई की ताकत बोलते हैं. जी. या अब अगर वो आप रूल भी सच्चाई की देखेंगे- ताकत जो है, जैसे प्रदीप जी ने पूछा कि मुंबई में बहुत बड़ा वैक्यूम है सर, 83 सीट्स का वैक्यूम है, 83 सीटों का. अगर वो आप लोगों की 83 दुआ रहेगी सीटें तो डेफिनेटली 83 नहीं, हम लोग 127 तक जाएंगे. Yes, yes. 127. Isn't that wonderful? Fantastic. I would love to see that. I would absolutely love to see that. थैंक यू. Thank you very much, sir. अभ्यंकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ Thank you. जुड़ने के लिए. It was nice talking to you after so many years. That's right, God sir. bless you and take care. You also वैसे take ही care, हमेशा sir. की तरह And और we बहुत- shall watch you. We shall watch you very very carefully. Sir, Thank you, sir. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. भवानी, Thank you जय very शिवाजी. much. Thank you very much. sir. जय महाराष्ट्र. Wonderful, absolutely wonderful talking to There is a huge very vacuum. enthusiastic man from the Shiv Sena. I think he's lost his hair a little bit.
but he hasn't The lost spirit, his heart. the spirit to His fight. heart is still the Yes. same, Yes. still the same pattern. Bilkul, sir. And I get very enthused each time I see somebody from the Yes. from Raj Thakre's party, because as far as Raj Thakre is concerned, he really reminds me of Bala Saheb Thakre. बिल्कुल जैसे बाला साहब ठाकरे बात करते थे, जिस तरीके से उनका हाव भाव था, बिल्कुल राज ठाकरे बिल्कुल वैसे ही बात करते हैं. Very frankly speaking, I don't think there's any doubt at all as to who is the real inheritor of Bala Saheb Thakre. That I think is Raj Thakre. That is my opinion. Well, that's it. That's just about it in tonight's show. We apologize for the fact that we were not able to give you, we were not able to bring you Mr. Arvind Sawant's complete views because of network issues in Delhi. We'll try again tomorrow. और कल आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.